नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। किसकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकता है? ऑप्शन ए फोलिक एसिड, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी जिंक। प्रेगनेंसी के दौरान किसकी कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फोलिक एसिड। During pregnancy, deficiency of folic acid can lead to neural tube defects. Folic acid is a B vitamin that plays a crucial role in the development of neural tube defects, which eventually form the baby's brain and spinal cord. International AIDS Day is celebrated on. International AIDS Day celebrated किया जाता है। ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 11 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 दिसंबर। इंटरनेशनल एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। इंटरनेशनल एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। ईच ईयर द डे इज डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द एड्स पेंडेमिक, showing support for people living with HIV AIDS and remembering those who have lost their lives to the is defined as a prevention of risk factor of a condition. Is a defined as a prevention of risk factor of condition. Option A primordial prevention, option B primary prevention, option C secondary prevention, option D tertiary prevention. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए primordial prevention. Primordial prevention refers to the prevention of risk factor of a condition of disease before they can occur. It aims to address the underlying social, economic and environmental determinants of health that can lead to the development of risk factors. इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए primordial prevention. डेली इंटेक फॉर फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का डेली इंटेक ऑप्शन ए 200 mg, ऑप्शन बी 300 mg, ऑप्शन सी 400 mg, ऑप्शन डी 350 mg। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 400 mg. The daily recommended intake for folic acid, also known as folate or vitamin B9, is 400 mg for adults. Folic acid is an essential nutrient that plays a crucial role in cell division, DNA synthesis and the production of red blood cells. So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 400 mg. विटामिन इज नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कौन सा विटामिन नेसेसरी है? ऑप्शन ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी. इट हेल्प्स रेगुलेट द लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड, which are essential for maintaining strong bones and teeth. So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी विटामिन डी। Which medicine is to prevent preterm delivery? कौन सी मेडिसिन प्रिवेंट प्रीटर्म डिलीवरी से करती है? ऑप्शन ए एंटीकोगुलेंट, ऑप्शन बी टोकोलाइटिक मेडिसिन, ऑप्शन सी एंटीस्पेस्मोडिक, ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टोकोलाइटिक मेडिसिन। टोकोलाइटिक medications are drugs that are used to inhibit or suppress uterine contractions in order to delay or prevent preterm labor. So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी टोकोलाइटिक मेडिसिन। Rhythmic contraction of heart is, rhythmic contraction of heart is ऑप्शन ए diastole, ऑप्शन बी palpitation, ऑप्शन सी सिस्टोल, ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सिस्टोल। ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल द हार्ट अंडरगोन अ सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन and relaxation to pump blood throughout the body. Systole refer to the phase of the cardiac cycle when the heart muscles contract, especially the ventricles. So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सिस्टोल। The opening of the right atrium into the right ventricle is guarded by
Opening of right atrium into the right ventricle is guarded by option A mitral valve, option B tricuspid valve, option C bicuspid valve, option D aortic valve. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी tricuspid valve. The tricuspid valve is located between the right atrium and the right ventricle of the heart. It consists of the three leaflets of cuffs which are attached to the heart wall. Warning sign of heart disease is include option A breathlessness, option B headache, option C excessive hunger, option D sudden weight loss. वार्निंग साइन ऑफ हार्ट डिजीज इज इंक्लूड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रीथलेसनेस. वार्निंग साइन ऑफ heart disease can vary, but one common symptom is breathlessness or shortness of breath. So इसका correct answer breathlessness होगा. Warning sign of heart disease can vary, but its common symptom is breathlessness. Risk factor for heart disease include, heart disease का risk factor होगा option A high blood pressure, option B smoking, ऑप्शन सी लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज इंक्लूड, इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव. कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स टुगेदर, इंडिविजुअल्स विद हाई ब्लड प्रेशर who smoke and lead a sedentary lifestyle are at a significantly high risk of developing heart disease. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment and. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका MCQ सीरीज में. At the time of diagnosis of Hodgkin lymphoma, which of the following area is often involved? Option A back, option B chest, option C groin, option D neck. At the time of diagnosis of Hodgkin lymphoma, which of the following area is often involved? Correct answer is D neck. Hodgkin lymphoma is a type of cancer that originates in the lymphatic system, which is part of the body's immune system. So इसका correct answer होगा D neck. Client with leukemia has neutropenia. Which of the following function must be frequently assessed? Option A blood pressure, option B bowel sound, option C heart sound, option D breath sound. Client with leukemia has neutropenia. Which of the following function must be frequently assessed? Correct answer is option C heart sound. Neutropenia is a condition characterized by an abnormally low number of neutrophils, which are a type of white blood cells responsible for fighting off infections. So correct answer is heart sound. For which of the following condition is a client with multiple myeloma monitored? Option A hypercalcemia, option B hyperkalemia, option C hypernatremia, option D hypermagnesemia. For which of the following condition is client with multiple myeloma monitored? Correct answer is hypercalcemia. The correct answer is hypercalcemia. In multiple myeloma, a type of cancer that affects plasma cells in the bone marrow, there is an abnormal proliferation of plasma cells which can lead to the production of excess calcium in the blood. Sunset eye is typical feature of. Sunset eye is typical feature of. Option A encephalitis, option B hydrocephalus, option C congenital heart disease, option D meningitis. Correct answer is option D meningitis. Sunset eye, also known as setting sun sign, refers to a characteristic eye position observed in infants with increased intracranial pressure due to various causes including meningitis. So correct answer option D meningitis. Abnormally high accumulation CSF in the intracranial space is called. Option A hydroammonius, option B subdural effusion, option C hydrocephalus, option D hydrocele. Abnormally high accumulation CSF in the intracranial space is called option C hydrocephalus.
Hydrocephalus refers to the abnormal accumulation of subcerebrospinal fluid CSF within the ventricles of the brain, leading to an increase in intracranial pressure. What are the most common site of the pressure sore ulcer? What are the most common site of the pressure ulcer? Option A sacrum heels, option B sacrum heels and hip, option C sacrum knee and elbow hip, option D sacrum hip. Correct answer is option C sacrum knee and elbow hip. Pressure ulcer often develop in areas where bony prominence are in direct contact with a supporting surface, leading to prolonged pressure and tissue damage. So correct answer is option C sacrum knee and elbow hip. What is the most common reason of patient develop pressure ulcer? What is the most common site reason? Correct answer is option A diabetes, option B morbid obesity, option C incontinence, option D immobility. So correct answer is option D immobility. Immobility or limited mobility is a significant risk factor for the development of pressure ulcer. So pressure ulcers का जो मेन कारण है immobility. Pressure ulcer are categorized as, प्रेशर अल्सर को कैटेगराइज किया जा सकता है ऑप्शन ए एक्यूट वुंड, ऑप्शन बी क्रॉनिक वुंड, ऑप्शन सी पार्शियल थिकनेस वुंड, ऑप्शन डी क्लोज वुंड. प्रेशर अल्सर्स आर कैटेगराइज एज, करेक्ट आंसर इज क्रॉनिक वुंड्स. प्रेशर अल्सर डेवलप एज a result of prolonged pressure on the skin, typically in areas where bone is close to the skin surface, such as the heels, sacrum, hips and elbows. So correct answer is chronic wounds. Inflammation of test is called, inflammation of testis is called option A orchitis, option B varicocele, option C hydrocele, option D hernia. Inflammation of testis is called, correct answer is option A orchitis. Orchitis refers to the inflammation of the testicles, which are the male reproductive organs responsible for producing sperm and testosterone. Orchitis can be caused by a viral or bacterial infection. So correct answer is orchitis. The most common hernia in females is, most common hernia in females is option A femoral hernia, option B direct inguinal hernia, option C indirect inguinal hernia, option D obstructor hernia. Correct answer is option C indirect inguinal hernia. An indirect inguinal hernia occurs when a part of the intestine or fatty tissue protrudes through a weak point in the abdominal wall near the inguinal canal. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment and. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका MCQ सीरीज में. द इन्फेंट डबल हिज हर बर्थ वेट एट विच मंथ, जो इन्फेंट का वजन है डबल हो जाता है कौन से मंथ में? ऑप्शन ए 5 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 7 मंथ, ऑप्शन डी 8 मंथ. इन्फेंट का जो वजन है डबल हो जाता है ऑप्शन ए 5 मंथ. 5 मंथ में इन्फेंट का वजन डबल हो जाता है. ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ इन्फेंट्स एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ एंड रैपिड गेन. ऑन एवरेज न्यूबॉर्न रिगेन देयर बर्थ वेट बाय about 2 weeks of age and then continue to gain weight. National Institute of Disaster Management is located at, National Institute of Disaster Management कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी पुणे. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिस स्थित है. NIDM इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट सर्व एज द अपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्बिडिटी इन इंडिया इज,
मातृत्व मृत्यु दर का सबसे सामान्य कॉमन कारण है ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी हेमरेज, ऑप्शन सी एबॉर्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हेमरेज। Maternal morbidity refers to any adverse health condition or complication experienced by a pregnant woman or a woman who has recently given birth। तो कॉमनेस्ट जो रीजन है इसका हेमरेज। रिस्क फैक्टर ऑफ निमोनिया, रिस्क फैक्टर ऑफ निमोनिया, ऑप्शन ए सिगरेट स्मोकिंग, ऑप्शन बी एल्कोहलिज्म, ऑप्शन सी एक्सपोजर टू स्मोक, डस्ट, एयर पोल्यूशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। रिस्क फैक्टर ऑफ निमोनिया, सिगरेट स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, एक्सपोजर टू स्मोक, डस्ट, एयर पोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव इसका मेन इसका रिस्क फैक्टर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम ऑल ऑफ द अबव मानेंगे। ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, ऑर्गेनिज्म जो जिम्मेदार है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के लिए, ऑप्शन ए गोनोकोकाई, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ऑप्शन डी सीजेला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। Community acquired pneumonia CAP refers to pneumonia that is acquired outside of healthcare settings such as hospitals or long-term care facilities। So इसका करेक्ट आंसर होगा Streptococcus pneumonia। Caput succedanum, Caput succedanum resolve within, Caput succedanum resolve within, ऑप्शन ए 7 days, ऑप्शन बी 4 days, ऑप्शन सी 10 days, ऑप्शन डी 8 days। कैपुट सक्सीडेनम करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 4 days। कैपुट सक्सीडेनम इज अ कंडीशन विच स्वेलिंग और एडिमा अकर ऑन द स्काल्प ऑफ अ न्यूबॉर्न फॉलोइंग अ वेजाइनल डिलीवरी। जो कैपुट सक्सीडेनम क्या है कि डिलीवरी के दौरान बच्चे की स्काल्प में सूजन आ जाना है, यानी कि उसकी इस कारण से। NICU स्टैंड्स फॉर, NICU स्टैंड्स फॉर यानी कि NICU की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन ए न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑप्शन बी न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑप्शन सी न्यूबॉर्न इंटरमीडिएट केयर यूनिट, ऑप्शन डी न्यूनेटल इंटरमीडिएट केयर यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। A NICU is a specialized unit in a hospital that provides intensive medical care to newborn babies, particularly those who are premature, critically ill, or have complex medical conditions. One of the cause for ophthalmic neonatal, one of the cause for ophthalmic neonatal is by option A HIV infection, option B क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, ऑप्शन सी रूबेला इन्फेक्शन, ऑप्शन डी गोनोरियल इन्फेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गोनोरियल इन्फेक्शन। ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम आल्सो नोन एज न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस इज एन आई इन्फेक्शन दैट अकर इन न्यूबॉर्न बेबीज। इट इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर गोनोरियल इन्फेक्शन। All are upper respiratory tract infection, all are upper respiratory tract infection except, इनमें से छोड़कर है ऑप्शन ए टेनाइटिस, ऑप्शन बी कोरेंजा, ऑप्शन सी ब्रोंकियोलाइटिस, ऑप्शन डी लेरिंजाइटिस। ऑल आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्सेप्ट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस इज ए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नॉट एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर ब्रोंकियोलाइटिस। और जो ऑप्शन थे वो सारे सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ऑप्शन थे, तो इसका करेक्ट आंसर ब्रोंकियोलाइटिस। कोड क्लैंप इज केप्ट इन विच ट्रे ऑफ लेबर रूम। कोड क्लैंप जो है कौन सी ट्रे में रखी जाती है लेबर रूम में? ऑप्शन ए एपिज्यूटेमी ट्रे, ऑप्शन बी बेबी ट्रे, ऑप्शन सी डिलीवरी ट्रे, ऑप्शन डी मेडिसिन ट्रे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डिलीवरी tray. The cord clamp is typically kept in the delivery tray in the labor room.
During childbirth, after the baby is born, the umbilical cord that connects the baby to the placenta is clamped and cut. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिलीवरी ट्रे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज में. लोवेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन पोजीशन इज ऑप्शन ए डिनोमिनेटर, ऑप्शन बी एंगेजमेंट, ऑप्शन सी एटीट्यूड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. लोवेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन पोजीशन इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंगेजमेंट. एंगेजमेंट रेफर्स टू द लोवेस्ट पार्ट ऑफ fetal presenting part entering or passing through the maternal pelvis. It occurs when the widest diameter of the fetal head, usually the biparietal diameter, passes through the pelvic brim. तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंगेजमेंट. लोवेस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, इसका करेक्ट आंसर एंगेजमेंट. माल पोजिशन कैन बी एन इंडिकेशन टू ऑप्शन ए एवीडी, ऑप्शन बी एसवीडी, ऑप्शन सी फॉल्स लेबर, ऑप्शन डी ट्रू लेबर. माल पोजिशन कैन बी इंडिकेशन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एवीडी. असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी, माल पोजिशन ऑफ द फीटस कैन बी एन इंडिकेशन फॉर असिस्टेड वेजाइनल डिलीवरी. माल पोजिशन refers to an abnormal position of the fetus during labor. IFA फुल फॉर्म, IFA की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन ए इंट्राफोलिकुलर एसे, ऑप्शन बी इंटरफ्यूज एसिड, ऑप्शन सी इंसुलिन फ्यूसिफॉर्म अमाइनो, ऑप्शन डी आयरन फोलिक एसिड. IFA की फुल फॉर्म, आंसर डी, आयरन फोलिक एसिड. Iron folic acid stand for iron folic acid. It refers to a combination of iron and folic acid, which are essential nutrients recommended for the prevention and treatment of iron deficiency anemia during pregnancy. Anemia during pregnancy is confirmed when hemoglobin level is less than. Anemia का confirm कब कर दिया जाता है hemoglobin के लेवल के हिसाब से? ऑप्शन ए 11 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन बी 10 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन सी 13 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन डी 12 ग्राम पर डीएल. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 11 ग्राम पर डीएल. एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कंफर्म व्हेन द हीमोग्लोबिन लेवल फॉल्स बिलो 11 ग्राम पर डीएल. सो इसका करेक्ट आंसर, यानी कि एनीमिया का कंफर्मेशन हो जाता है 11 ग्राम पर डीएल के नीचे हीमोग्लोबिन होने से. फॉर मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच, how much ml of saline is inflated into for a condom tamponade procedure? ऑप्शन ए 300 से 500 ml, ऑप्शन बी 200 से 500 ml, ऑप्शन सी 300 से 600 ml, ऑप्शन डी 100 से 300 ml. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 300 से 500 ml. The recommended volume of saline to be inflated into the condom is generally between 300 to 500 ml. आशा करता हूं आप लोगों को हमारे क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे. आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके. वुमन क्रिएटिंग मोस्ट कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर फॉर हर फ्यूचर बेबी 1 to 2 weeks बिफोर चाइल्ड बर्थ कैन बी साइन ऑफ. ऑप्शन ए सर्वाइकल रिपनिंग, ऑप्शन बी ड्रॉपिंग, ऑप्शन सी ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन डी नेक्स्टिन सिंड्रोम. इसका करेक्ट आंसर होगा option D, Nextin syndrome. Therefore, the correct answer is that a pregnant woman exhibiting a strong urge to create a comfortable atmosphere for her future baby 1 to 2 weeks before childbirth is a sign of Nextin syndrome. ये बहुत ही फायदेमंद क्वेश्चन है. A sense of decreased weight and abdominal tension felt by a pregnant woman and descent of fetus into pelvic cavity prior to labor is called. ऑप्शन ए lightning, ऑप्शन बी क्यूकनिंग, ऑप्शन सी चैडविक साइन, ऑप्शन डी ऑसिवेंडर साइन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए lightning. Lightning also known as engagement or dropping refers to the descent of the fetus into the pelvic cavity in preparation for labor. So इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए lightning. The first fetal movement felt by the mother. पहला फीटल मूवमेंट जो मदर के द्वारा महसूस किया जाता है उसे जानते हैं. ऑप्शन ए चार्डविक साइन, ऑप्शन बी ओसेंडर साइन, ऑप्शन सी क्विकनिंग, ऑप्शन डी गुडल साइन. जो फर्स्ट साइन मदर के द्वारा महसूस किया जाता है, मां के द्वारा महसूस किया जाता है, उसे जानते हैं ऑप्शन सी क्विकनिंग. क्विकनिंग के नाम से उसे जानते हैं. क्विकनिंग रेफर्स टू द फर्स्ट परसेप्शन ऑफ फीटल मूवमेंट बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इट इज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एंड रिएश्योरिंग साइन ऑफ फीटल वेलबींग. सो इसका सही आंसर होगा क्विकनिंग. क्विकनिंग ऐसा साइन है जो पहला मदर के द्वारा महसूस किया जाता है. नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट शुड बी एटलीस्ट. नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट कम से कम होनी चाहिए मदर की. ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6. कम से कम मदर की एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4. WHO रिकमेंड्स मिनिमम ऑफ 4 एंटीनेटल विजिट. WHO रिकमेंड करता है कम से कम 4 तो एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए फॉर प्रेग्नेंट वुमन एज पार्ट ऑफ रूटीन प्रीनेटल केयर. दीज विजिट्स आर एसेंशियल फॉर मॉनिटरिंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ बोथ द मदर एंड चाइल्ड. EDD इज कैलकुलेशन बाय. जो EDD है उसका कैलकुलेशन किया जाता है. ऑप्शन ए LMP प्लस 9 मंथ, ऑप्शन बी LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, ऑप्शन सी LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 वीक, ऑप्शन डी LMP प्लस 9 मंथ. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज. टू कैलकुलेट द EDD the most common method is to start with the last menstrual period LMP and add 9 months and 7 days. This method is known as Naegele's rule and is widely used in clinical practice. So इसका correct answer option B LMP plus 9 months plus 7 days. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment. Which of the following condition is an example of acute organic mental disorder? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति को ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर कहा जाता है? ऑप्शन ए सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन बी डेलिरियम, ऑप्शन सी मैनिक साइकोसिस, ऑप्शन डी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर बी डेलिरियम. डेलिरियम मीन्स चित्त विभ्रम, यानी वास्तव में मस्तिष्क की रासायनिक प्रक्रियाओं में दोष उत्पन्न हो जाने के कारण होता है. चित्त विभ्रम का प्रमुख भाव एक प्रकार का भय होता है. ऑटिज्म occurs mostly in option A infants, option B adults, option C pregnancy and option D old age. ऑटिज्म डेवलपमेंट डिसऑर्डर है. यह अधिकतर बच्चे के जन्म पर या 2 साल की एज में अपीयर हो जाते हैं और यह बच्चे के मस्तिष्क के विकास की क्षमता को प्रभावित करते हैं. अस्थमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज. अस्थमा एक दीर्घकालिक विकार है जिसका कारण ऑप्शन ए निमोनिया, ऑप्शन बी स्किन रैशेज, ऑप्शन सी हार्ट ब्लॉकेज एंड ऑप्शन डी इन्फ्लामेशन इन द एयरवे. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी इन्फ्लामेशन इन द एयरवे. अस्थमा फेफड़ों के वायुमार्ग का एक सूजन संबंधी रोग है जो सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न करता है. ट्रीटमेंट मेथड ऑफ स्वेलिंग फ्रॉम अ हेड इंजरी इज ऑप्शन ए कोल्ड कंप्रेस, ऑप्शन बी हॉट कंप्रेस, ऑप्शन सी मेडिकेट एंड ऑप्शन डी लीव इट. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कोल्ड कंप्रेस. कोल्ड कंप्रेस में सिर की चोट से सूजन के इलाज में आइस पैक्स और ठंडे सेक का यूज़ किया जाता है. एब्सेंस ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड. स्मृति की अनुपस्थिति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एमेंशिया, ऑप्शन बी डिमेंशिया, ऑप्शन सी डेलिरियम एंड ऑप्शन डी एपैथी. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एमेंशिया.
एमेंशिया मीन्स भूलने की बीमारी या याददाश्त में कमी को कहा जाता है। डिप्रेशन इज़ अ डिसऑर्डर। अवसाद किस प्रकार का विकार है? ऑप्शन ए सोमेटोफॉर्म, ऑप्शन बी डिसोसिएटिव, ऑप्शन सी स्किज़ोफ्रेनिया एंड ऑप्शन डी मूड। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी मूड। अवसाद एक आम और गंभीर मानसिक बीमारी है जो संकट की भावना और रुचि की कमी को जन्म देती है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और ऑल्सो नाउन एज। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नोसोकोमियल इन्फेक्शंस, ऑप्शन बी प्राइमरी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन, ऑप्शन डी आइडियोपैथिक इन्फेक्शन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए नोसोकोमियल इन्फेक्शन। एक व्यक्ति जो कम से कम 2 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहने के बाद कोई संक्रमण से ग्रसित हो जाता है तो इसे हॉस्पिटल से प्राप्त संक्रमण कहा जाता है। द फिफ्थ वाइटल साइन इज। 5वां महत्वपूर्ण वाइटल साइन कौन सा है? ऑप्शन ए मीन आर्टियल प्रेशर, ऑप्शन बी एबीजी एनालिसिस, ऑप्शन सी टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी पेन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी पेन। आधिकारिक तौर पर फिफ्थ वाइटल साइन पेन को घोषित किया गया है। कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नॉन एज। कोलैप्सिंग पल्स को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए बाइजेमिनल पल्स, ऑप्शन बी पल्सेस अल्टरनेंस, ऑप्शन सी वाटर हैमर पल्स एंड ऑप्शन डी बाउंडिंग पल्स। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी वाटर हैमर पल्स। वॉटसन के वाटर हैमर पल्स को कोलैप्सिंग पल्स के रूप में भी जाना जाता है। सुटेबल पोजीशन फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन इज। रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए उपयुक्त स्थिति कौन सी है? ऑप्शन ए प्रोन पोजीशन, ऑप्शन बी लिथोटोमी पोजीशन, ऑप्शन सी डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ऑप्शन डी सिम्स पोजीशन। आंसर इज ऑप्शन डी सिम्स पोजीशन। रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को सिर और घुटने को उठाकर मेज पर लेटाया जाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज में। यदि किसी महिला को फरवरी 2021 में अपनी एएनसी जांच में टीडी के 2 टीके लग चुके थे, किंतु 8वें माह में उसका गर्भपात हो गया, अब वो महिला पुनः गर्भवती है, उसे टीडी का कौन सा टीका लगाया जाएगा? ऑप्शन ए टीका नहीं लगाया जाएगा, ऑप्शन बी टीडी फर्स्ट लगाया जाएगा, ऑप्शन सी टीडी सेकंड लगाया जाएगा, ऑप्शन डी टीडी बूस्टर लगाया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी टीडी का बूस्टर लगाया जाएगा। यदि महिला गर्भावस्था में महिला को न्यूनतम 1 माह के अंतराल से टीडी के 2 टीके लगाए गए हैं तथा इसके 3 वर्ष के भीतर महिला पुनः गर्भवती हो जाती है तो उसे फिर से 2 टीके लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है। उसे टीडी का 1 टीका यानी बूस्टर डोज लगाने पर ही पर्याप्त इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी, इसलिए उसे टीडी का बूस्टर डोज लगाएगा। यदि एक महिला जिसकी उम्र 19 वर्ष है, जिसके पूर्व में 2 मृत बच्चे जन्म हुए थे एवं वर्तमान में वह पुनः गर्भवती है तो उस महिला को किस श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी उच्च जोखिम वाली महिला, ऑप्शन सी सामान्य जोखिम वाली महिला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यदि वह एक महिला जिसकी उम्र 19 वर्ष है, जिसके पूर्व में 2 मृत जन्म हुए थे एवं वर्तमान में वो पुनः गर्भवती है तो उसे उच्च जोखिम वाली महिला की श्रेणी में रखा जाएगा। गर्भवती महिला के पंजीयन के समय उसकी पूर्व गर्भावस्था का विवरण पूछा जाता है। यदि गर्भवती महिला को पूर्व में 2 मृत जन्म हुए हैं तो गर्भावस्था में उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है, अतः उसे उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखते हुए उसकी विशेष देखभाल की जाने की आवश्यकता है तथा उसे गर्भावस्था में कम से कम 1 बार चिकित्सक से आवश्यक परामर्श लेने की सलाह दी जाती है और उसे उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा जाएगा। यदि एक महिला आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, वह जयपुर घूमने आई है जहां उसका प्रसव राजकीय चिकित्सालय में होता है तथा उसकी लड़की पैदा होती है तो क्या उसे राष्ट्रीय योजना का लाभ मिलेगा? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी पता नहीं, ऑप्शन डी सभी को दिया जाता है। यदि एक महिला आगरा उत्तर प्रदेश की रहने वाली है तो क्या उसे राष्ट्रीय योजना का लाभ मिलेगा? ऑप्शन आंसर बी नहीं। राष्ट्रीय योजना राजस्थान राज्य के मूल निवासियों पर लागू है। यदि किसी अन्य राज्य से लाभार्थी राजस्थान के किसी राज्य के चिकित्सा संस्थान पर प्रसव करवाते हैं तथा लड़की का जन्म होता है
तो उस स्थिति में उस लाभार्थी को राष्ट्रीय योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यह योजना राजस्थान निवासियों के लिए ही लागू की गई है। यदि एक महिला जिसका मूल निवास शहर है किंतु उसका प्रसव उसके माता पिता के गांव के राजकीय चिकित्सालय में हुआ है तो उसे जननी शिशु सुरक्षा योजना में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? ऑप्शन ए 1400 रुपये, ऑप्शन बी 1000 रुपये, ऑप्शन सी कुछ नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन डी कुछ कह नहीं सकते। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1000 रुपये। जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव कराने पर लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि का भुगतान उसके निवास स्थान के आधार पर किया जाता है। यदि वह ग्रामीण क्षेत्र से है तो 1400 रुपये तथा शहरी क्षेत्र से है तो 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। चूंकि वह शहरी क्षेत्र से निवास स्थान है तो उसको 1000 राशि का भुगतान किया जाएगा। एक नवविवाहित दंपति को स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा दी जाने वाली सलाह में से सबसे उपयुक्त सलाह है। ऑप्शन ए गर्भधारण से पूर्व अपनी स्वास्थ्य जांच कराना, ऑप्शन बी गर्भधारण से 3 माह पूर्व से फोलिक एसिड की गोली लेना, ऑप्शन सी गर्भ निरोधक साधन का उपयोग करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा आंसर डी उपयुक्त सभी। नवविवाहित दंपति से भेंट के दौरान उपरोक्त समस्त सलाह देना उपयुक्त है जिससे दंपति बेहतर परिवार नियोजन कर सके तथा शिशु के जन्म से पहले सुरक्षित प्रसव की तैयारियां की जा सके। इसलिए उसे सभी सलाहों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि उसको सही सलाह दी जानी है। यदि किसी गांव में डिप्थीरिया के केस पाए जाते हैं तो एएनएम आशा को तुरंत क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों को तुरंत डीपीटी वैक्सीन देनी चाहिए, ऑप्शन बी पता चलते ही तुरंत अपने चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना चाहिए, ऑप्शन सी इस सूचना को किसी को नहीं बताना चाहिए, ऑप्शन डी पता नहीं। यदि किसी गांव में डिप्थीरिया के केस पाए जाते हैं तो एएनएम आशा को क्या करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पता चलते ही तुरंत अपने चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में डिप्थीरिया के केस पाए जाते हैं तो एएनएम आशा द्वारा तुरंत संबंधित चिकित्सा अधिकारी को सूचित करना चाहिए जिससे बीमारी को फैलने से बचाने के लिए उचित प्रयास किए जा सके। इसके साथ ही निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट करें जिससे कि चिकित्सा अधिकारी सही से रिपोर्टिंग कर सके अपने उच्चतम अधिकारियों को। अगर किसी बच्चे को वैक्सीन की अगली खुराक के लिए देर से लाया जाता है तो क्या फिर से टीके की पहली खुराक से शुरू करना चाहिए? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी पता नहीं, ऑप्शन डी ड्यू लिस्ट से हटा देना चाहिए। अगर किसी बच्चे को वैक्सीन की अगली खुराक के लिए देर से लाया जाता है तो क्या फिर से वैक्सीन की पहली खुराक से शुरू करना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नहीं। टीकाकरण सारणी के अनुसार बच्चे को वैक्सीन की कुछ खुराक दी जा चुकी है और बच्चा अगली खुराक के लिए देरी से आया है तो पहली खुराक फिर से लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसे टीकाकरण सारणी की अनुसार अगली खुराक दी जानी चाहिए, यानी कि जहां से उसकी छुटी हुई खुराक है वहां से उसको चालू कर देना चाहिए। 1 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चे जिसे कभी भी कोई टीका नहीं दिया गया है उसे कौन सा टीका दिया जा सकता है? ऑप्शन ए बीसीजी, ओपीवी, पीसीवी, ऑप्शन बी डीपीटी, एमआर और एमएल विटामिन ए का गोल, ऑप्शन सी डीपीटी, ओपीवी, एमआर और विटामिन ए का गोल, ऑप्शन डी पता नहीं। 1 से 5 वर्ष के उम्र के बच्चे जिसे कभी कोई टीका नहीं दिया गया है उसे आंसर सी डीपीटी फर्स्ट, ओपीवी फर्स्ट, एमआर फर्स्ट और विटामिन ए का गोल। ऐसी स्थिति में बच्चे को ओपीवी, एमआर, डीपीटी व विटामिन ए की पहली खुराक देंगे तथा निर्धारित के अंतराल पर वैक्सीन की अगली खुराक लगाएंगे तथा समस्त डोज पूरी करेंगे। पिछली खुराक के 6 माह के अंतराल से विटामिन ए की खुराक पिलाएंगे। कौन कौन सी वैक्सीन पर ओपन वाइल पॉलिसी लागू नहीं होती है? कौन कौन सी वैक्सीन पर ओपन वाइल पॉलिसी लागू नहीं होती है? ऑप्शन ए ओपीवी, आईपीवी, रोटा, ऑप्शन बी एमआर, बीसीजी, ऑप्शन सी रोटा, एमआर, ओपीवी, ऑप्शन डी ओपीवी, पीसीवी, रोटा,
कौन कौन सी वैक्सीन पर ओपन वाइल पॉलिसी लागू नहीं होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी MR BCG। राजस्थान में राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अंतर्गत शामिल वैक्सीन में से मीजल्स, रूबेला तथा BCG वैक्सीन पर ओपन वाइल पॉलिसी लागू नहीं होती है। इन वैक्सीन को खोलने के 4 घंटे के भीतर उपयोग किया जाता है। हाल ही में रोटा वायरस वैक्सीन पर ओपन वाइल पॉलिसी लागू की गई, किंतु जिन रोटा वायरस वैक्सीन की कैप पर VVM लगा है वह पूर्व की भांति ओपन वाइल पॉलिसी में शामिल नहीं होगी। निम्न में से कौन सी वैक्सीन है जिसकी प्रथम खुराक को बच्चे की 1 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर नहीं दी जाती है? ऑप्शन ए OPV वैक्सीन, ऑप्शन बी DPT वैक्सीन, ऑप्शन सी MR वैक्सीन, ऑप्शन डी PCV वैक्सीन। निम्न में से कौन सी वैक्सीन है जिसकी प्रथम खुराक को बच्चे की 1 वर्ष की पूर्ण होने पर नहीं दी जाती है? इसका सही उत्तर होगा आंसर डी PCV वैक्सीन। उक्त समस्त वैक्सीन में से PCV वैक्सीन बच्चे को 1 वर्ष की आयु तक ही दी जाती है। यदि बच्चे को 1 वर्ष की आयु तक PCV वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं दी गई है तो उसे PCV वैक्सीन नहीं दी जाएगी। यदि 1 वर्ष की आयु तक एक भी खुराक दी गई है तो उसे शेष डोज भी दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका MCQ सीरीज में। आशा हैज बीन रेस्पॉन्सिबल फॉर इन रूरल एरिया। आशा जिम्मेदार है ग्रामीण क्षेत्र में 1000 पॉपुलेशन पर, ऑप्शन बी 2000 की पॉपुलेशन पर, ऑप्शन सी 3000 की पॉपुलेशन पर, ऑप्शन डी 4000 की पॉपुलेशन पर। आशा जिम्मेदार है, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए 1000 की पॉपुलेशन पर। आशा वर्कर इन इंडिया आर टिपिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1000 पीपल इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्र में आशा जिम्मेदार है 1000 की जनसंख्या पर आशा लगाई जाती है, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1000 पॉपुलेशन पर। द बेसिक यूनिट इन HMIS इज। द बेसिक यूनिट होगी HMIS की ऑप्शन ए डाटा, ऑप्शन बी टेक्निक, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी सुपरविजन। HMIS के लिए करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए डाटा। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ सिस्टम used for the collection, management, analysis and dissemination of health related data. The basic unit in HMIS is data as it forms the foundation of the system. तो इसका करेक्ट आंसर डाटा। What is the role of आशा? आशा का क्या रोल है? ऑप्शन ए टू क्रिएट अवेयरनेस इन एरिया, बी काउंसलिंग प्रेग्नेंट वुमन, ऑप्शन सी एक्ट एज डिपोट होल्डर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। करेक्ट आंसर होगा इसका डी ऑल ऑफ एबव। आशा वर्कर आर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हु प्ले अ क्रूशियल रोल इन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डिलीवरी एट द ग्रास रूट लेवल। तो इसका जो सारे कार्य आशा का है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ above. Correct answer is option D all of above. In which year did the midday meal program start? कौन से ईयर में मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1920। कौन से ईयर में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1961. The midday meal program in India started in the year 1961. It was initially launched as a pilot project in Tamil Nadu. तमिलनाडु में पायलट प्रोजेक्ट में लॉन्च हुआ था, where the local government provided free lunches to children in primary school to encourage their enrollment and improve their nutrition. तो इसका सही उत्तर होगा 1961. Universal immunization program was started in। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में स्टार्टेड हुआ था। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1992। इसका करेक्ट उत्तर होगा, करेक्ट आंसर होगा करेक्ट
ऑप्शन सी 1985. Universal Immunization Program UIP in India was started in 1985. It was launched by the Government of India with the aim of providing universal access to immunization services for all children across the country. तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1985. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था यूआईपी इन 1985. ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट डिजीज कॉज्ड ड्यू टू. जो ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट डिजीज होती है किसके कारण से होती है? ऑप्शन ए फिजिकल एजेंट, ऑप्शन बी केमिकल एजेंट, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल एजेंट, ऑप्शन डी मैकेनिकल एजेंट. कौन से कारणों से ये होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर ए फिजिकल. ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट refers to the development of cataracts as a result of occupational exposure to certain physical agents. So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए. आप लोग सब्सक्राइब करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते जाइए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके, उनकी मदद हो सके. सिलिकोसिस कॉज्ड ड्यू टू. सिलिकोसिस किन कारणों से होता है? ऑप्शन ए एब्स्टेसोसिस, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी बेरियम. सिलिकोसिस का कारण होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिलिका. सिलिका इज अ लंग डिजीज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट. सिलिका इज अ नेचुरली अकरिंग मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स, सैंड एंड सॉइल. तो सिलिकोसिस के लिए जिम्मेदार मेन कारण होगा इसका सिलिका. फ्रोस्ट बाइट डिजीज कंडीशन कॉजेटिव एजेंट वाज. फ्रोस्ट बाइट जो डिजीज कंडीशन होती है इसका मेन कॉजेटिव एजेंट होगा ऑप्शन ए हीट, ऑप्शन बी नॉइज, ऑप्शन सी कोल्ड, ऑप्शन डी लाइट. फ्रोस्ट बाइट के लिए इसका मेन कॉजेटिव एजेंट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोल्ड. Frostbite is a condition caused by exposure to extremely cold temperature. इसमें शरीर extremely cold temperature में जाने से leading to freezing of the skin and underlying tissues. So इसका मेन कारण है कि frostbite में cold में ज्यादा समय तक रहने से skin freeze हो जाना. What is the early sign of cervical cancer? Cervical cancer के early sign क्या होंगे? ऑप्शन ए asymptomatic, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी बैक एक, ऑप्शन डी ब्लीडिंग पर वेजाइना. क्या मेन साइन सिम्टम होंगे इसके? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए असिम्टोमेटिक. इसके जो मेन साइन सिम्टम होते हैं असिम्टोमेटिक होते हैं इन द अर्ली स्टेज. सर्वाइकल कैंसर ऑफन डज नॉट कॉज नोटिफिएबल सिम्टम्स. दिस इज वाई रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट सच एज द पेप स्मीयर एंड एचपीवी टेस्ट आर एसेंशियल फॉर एनी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन. व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस? पोलियो वायरस का रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? ऑप्शन ए ड्रॉपलेट, ऑप्शन बी फीकल ओरल, ऑप्शन सी ट्रांसप्लेसेंटल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फीकल ओरल रूट. द करेक्ट आंसर इज फीकल ओरल. द प्राइमरी रूट ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द पोलियो वायरस इज थ्रू द फीकल ओरल रूट. सो इसका करेक्ट आंसर इज फीकल ओरल रूट. आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाइए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज में. रिस्क फैक्टर ऑफ निमोनिया. निमोनिया का रिस्क फैक्टर है ऑप्शन ए सिगरेट स्मोकिंग, ऑप्शन बी अल्कोहलिज्म, ऑप्शन सी एक्सपोजर टू स्मोक डस्ट एयर पोल्यूशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. निमोनिया का रिस्क फैक्टर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द लिस्टेड फैक्टर्स cigarette smoking, alcoholism and exposure to smoke, dust, air pollution are known risk factors of pneumonia. यानी कि सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, एक्सपोजर टू स्मोक यानी धुआं में, डस्ट में और एयर की जो पोल्यूशन में, ये सब इसके निमोनिया के रिस्क फैक्टर काउंट किए जाते हैं. बिलिरुबिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ. बिलिरुबिन एक प्रोडक्ट है
ऑप्शन ए WBC ब्रेकडाउन, ऑप्शन बी RBC ब्रेकडाउन, ऑप्शन सी प्लेटलेट ब्रेकडाउन, ऑप्शन डी फैट ब्रेकडाउन। जो बिलिरुबिन का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी RBC breakdown. When RBC cells reach the end of their lifespan, typically around 120 days, they are broken down in a process called hemolysis. 120 दिन के बाद में जो RBC टूटती है उस प्रोसेस को hemolysis कहा जाता है और वो बिलिरुबिन के कारण होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर RBC ब्रेकडाउन है। Examples of NSAID included. Examples of NSAID included. Option A aspirin, option B ibuprofen, option C dexamethasone, option D both A and B. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी both A and B. एस्प्रिन एंड ibuprofen दोनों NSAID है। NSAID are a class of medication commonly used to relieve pain, reduce inflammation and lower fever. So इसका करेक्ट आंसर एस्प्रिन एंड ibuprofen. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कोलेरा। कोलेरा के क्लिनिकल फीचर्स है ऑप्शन ए एक्यूट वाटरी डायरिया, ऑप्शन बी नो ब्लड इन स्टूल, ऑप्शन सी नो म्यूकस इन स्टूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कोलेरा इंक्लूड acute watery diarrhea, no blood in stool and no mucus in stool. तो आप लोग इस क्वेश्चंस को जो भी सीरीज आप लोगों के सामने आई जा रही है इनको आप शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करवाते जाइए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। हेमेटेमेसिस इज, हेमेटेमेसिस क्या है? ऑप्शन ए ब्लड इन वोमिट्स, ऑप्शन बी ब्लड इन स्पूटम, ऑप्शन सी फ्रेश ब्लड इन स्टूल एंड ऑप्शन डी ऑक्युल्ट ब्लड इन स्टूल। हेमेटेमेसिस क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्लड इन वोमिट्स। हेमेटेमेसिस refers to the medical condition characterized by the presence of blood in vomit. So इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्लड इन वोमिट्स। वोमिट्स में ब्लड आना हेमेटेमेसिस कहलाता है। रिस्क इज मोर आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में रिस्क ज्यादा होती है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए की, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी एंड ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी। द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हेपेटाइटिस मोर आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस सी। सो इसके ज्यादा चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस सी होने के। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब कराते जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करते जाइए। अमेबिक डिसेंट्री caused by, amoebic dysentery caused by ऑप्शन ए ई कोलाई, ऑप्शन बी एंटेमेबिका, ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोकोकाई एंड ऑप्शन डी सीजेला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एंटेमेबिका। Amoebic dysentery, also known as amoebiasis, is caused by the protozoan parasite called Entamoeba histolytica. So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी एंटोअमीबिका। अमेबिक डिसेंट्री जो कारण है एंटोअमीबिका का। बेसिलरी डिसेंट्री कॉजेटिव एजेंट इज, बेसिलरी डिसेंट्री कॉजेटिव एजेंट इज ऑप्शन ए एंटोअमीबिका, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी सीजेला, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकाई। बेसिलरी डिसेंट्री कॉजेटिव इसका कॉजेटिव एजेंट है। करेक्ट आंसर इज सीजेला। Bacillary dysentery, also known as sigilosis, is caused by the bacteria belonging to the genus Shigella. So इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी Shigella. लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके, उन तक पहुंचा जा सके। डिस्फेजिया मीन्स, डिस्फेजिया का मतलब ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, ऑप्शन सी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड ऑप्शन डी डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, यानी निगलने में
कठिनाई। डिस्पेजिया रेफर्स टू द मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी और डिस्कम्फर्ट इन स्वैल्विंग फूड, लिक्विड्स और सलाइवा। तो डिस्पेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वैल्विंग, यानी कि रेफर्स टू मेडिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी इन Which of the following test is used to diagnosis अल्सर? अल्सर का डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए ईसीडी, ऑप्शन बी बेरविंग सोल्वा, ऑप्शन सी सीटी स्कैन एंड ऑप्शन डी एक्सरे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बेरियम सोल्वा। बेरियम सोल्वा is a diagnostic test commonly used to detect and evaluate ulcer in the upper gastrointestinal tract, particularly in the esophagus, stomach and duodenum। तो बेरियम सोलो जो टेस्ट किया जाता है इसके द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज में। फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन अलोंग विथ। पहली डोज विटामिन ए की किसके साथ दी जाती है? ऑप्शन ए एमएमआर, ऑप्शन बी एमआर, ऑप्शन सी डीपीटी, ऑप्शन डी ओपीवी। पहली डोज जो विटामिन ए की दी जाती है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एमआर के साथ में, मीजल्स रूबेला के साथ में। द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज टिपिकली गिवन अलोंग विद द मीजल्स वैक्सीन। विच ड्रग इज यूज्ड इन लेप्रोसी? कौन सी ड्रग यूज की जाती है लेप्रोसी में? ऑप्शन ए एथेम्प्टोल, ऑप्शन बी क्लोजेफाजेमाइन, ऑप्शन सी मेथोट्रोक्सेट, ऑप्शन डी आइसोनाइज्ड। करेक्ट आंसर होगा क्लोजेफाजेमाइन। क्लोजेफाजेमाइन इज अ ड्रग कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, अ chronic infectious disease caused by the bacteria Mycobacterium leprae. So correct answer is clozapamine. What is the full form of AMTSL? What is the full form of AMTSL? Option A active management of third stage of labor, option B active management of trial stage of labor, option C action management of third stage of labor, option D management of true stage of labor. Correct answer is option A active management of third stage of labor. It refers to a set of intervention and practice performed during the third stage of labor. So correct answer is option A active management of third stage of labor. आंगनवाड़ी सेंटर्स अंडर विच स्कीम? आंगनवाड़ी सेंटर्स किस स्कीम के अंडर आते हैं? ऑप्शन ए आईसीडीएस, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी एफएओ, ऑप्शन डी केयर। आंगनवाड़ी सेंटर्स कौन सी स्कीम में आते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए आईसीडीएस। The ICDS is a flagship program of the Government of India aimed at addressing the health, nutrition and development needs of children. So ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेंटर्स आते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इज अ फुल फॉर्म ऑफ ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च इन द ईयर। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1983 एंड ऑप्शन डी 1984। करेक्ट आंसर इज 1982। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP वाज लॉन्च इन द ईयर 1982 इन इंडिया। भारत में हमारे NMHP 1982 में लॉन्च हुआ था। मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन एल्कोहलिक पेशेंट्स। एल्कोहलिक पेशेंट में कौन सी डेफिशिएंसी होती है? ऑप्शन ए पायरिडोक्सिन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। एल्कोहलिक पेशेंट में कौन सी डेफिशिएंसी होगी? करेक्ट आंसर इज थायमिन, ऑप्शन बी थायमिन। थायमिन आल्सो नोन एज विटामिन B1। थायमिन को विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं। इज द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सी इन एल्कोहलिक पेशेंट। ये जो मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी पाई जाती है एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर। वेक्टर ऑफ बुर्जिया मेलाई पैरासाइट इज। वेक्टर ऑफ बुर्जिया मेलाई पैरासाइट इज ऑप्शन ए क्विलेक्स, ऑप्शन बी मेंसोनिया, ऑप्शन सी एडिस, ऑप्शन डी एनोफाइलिन। बुर्जिया मेलाई किस पैरासाइट किसकी वजह से होता है? करेक्ट आंसर इज बी मेंसोनिया। द वेक्टर ऑफ बुर्जिया मेलाई पैरासाइट विच
causes lymphatic filariasis commonly known as elephantiasis is the Mansonia mosquito. elephantiasis होता है. In which disease sweating stage occurs? इस कौन सी बीमारी में स्वेटिंग स्टेज आती है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी चिकनगुनिया. कौन सी बीमारी के अंतर्गत स्वेटिंग स्टेज आती है? आंसर सी मलेरिया. द डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरिंग एपिसोड ऑफ फीवर. इसके अंदर फीवर नॉन एज पेराक्सिमस विच कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज. इसके अंदर 3 स्टेज होती है, द कोल्ड स्टेज, द हॉट स्टेज एंड द स्वेटिंग स्टेज. तो 3 स्टेज इसके अंदर पाई जाती है मलेरिया में. गैम्बूसिया फिश इज यूज्ड एज द मॉस्किटो कंट्रोल मेजर इन विच डिजीज. गैम्बूसिया फिश जो डाली जाती है कंट्रोल मेजर्स के अंदर कौन सी बीमारियों में? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी चिकनगुनिया. सो करेक्ट आंसर इज मलेरिया, ऑप्शन बी. गैम्बूसिया फिश आल्सो नोन एज मॉस्किटो फिश. गैम्बूसिया फिश को मॉस्किटो फिश के नाम से भी जानते हैं. इज कॉमनली यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट फॉर मॉस्किटो लार्वे. हाइड्रोफोबिया इज कोज्ड बाय विच वायरस. हाइड्रोफोबिया किस वायरस की वजह से होता है? ऑप्शन ए एडिनो वायरस, ऑप्शन बी रोटा वायरस, ऑप्शन सी लाइजा वायरस, ऑप्शन डी राइनो वायरस. हाइड्रोफोबिया कौन से वायरस की वजह से होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लाइजा वायरस. हाइड्रोफोबिया आल्सो नोन एज रेबीज इज कोज्ड बाय द लाइजा वायरस. स्पेसिफिकली द रेबीज लाइजा वायरस. इट इज टिपिकली ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ saliva or infected animal. Thanks for watching. Please subscribe, share and like. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका MCQ सीरीज में. What is the recommended age for HPV vaccination administration? Option A 18 to 45 years, option B 10 to 12 years, option C 20 to 40 years, option D about 20 years. क्या एज होगी HPV वैक्सीनेशन के लिए सही? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 10 to 12 years. The Center for Disease Control and Prevention (CDC) in the United States recommends routine HPV vaccination for both boys and girls at age 10 to 12 years of age. Which vaccine is administered for prevention of cervix cancer? कौन सी वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है सर्विक्स का कैंसर बचाने के लिए? ऑप्शन ए HPV वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी टेटनस, ऑप्शन डी इम्यूनाइजेशन. कौन सी वैक्सीन है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए HPV वैक्सीन. ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन. द HPV वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर एज वेल एज अदर टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड डिजीज कॉज्ड बाय सर्टेन स्ट्रेन ऑफ द HPV वायरस. तो इसका करेक्ट आंसर HPV वैक्सीन. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आल्सो नोन एज. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD जो है वो भी जानी जाती है. ऑप्शन ए इन्फेक्शियस डिजीज, ऑप्शन बी एक्यूट डिजीज, ऑप्शन सी क्रॉनिक डिजीज, ऑप्शन डी कम्युनिकेबल डिजीज. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रॉनिक डिजीज. Non-communicable disease NCDs are also referred to as chronic disease. So इसका करेक्ट आंसर होगा सी क्रॉनिक डिजीज. आप लोगों को सब तरीके की जो क्वेश्चंस आंसर दिए जा रहे हैं उनके बारे में आप लोग लिखते जाइएगा और कमेंट करते जाइएगा. Snellen chart is used to measure. Snellen chart is used to measure. ऑप्शन ए hearing acuity, ऑप्शन बी visual acuity, ऑप्शन सी इंट्राओकुलर प्रेशर, ऑप्शन डी इंट्राक्रेनियल प्रेशर. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विजुअल एक्यूटी. स्नेल चार्ट आल्सो नोन एज द स्नेल आई चार्ट is a tool used to measure visual acuity. It is commonly used in eye clinics, optometric office and ophthalmology department. So इसका करेक्ट आंसर विजुअल एक्यूटी के लिए. Perspiration means process of option A sweating, option B lacrimation, option C swallowing, option D breathing. Perspiration means क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए sweating. Perspiration refers to the process of sweating which is the body's natural way of regulating temperature.
सो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वेटिंग। आप लोग कमेंट करते जाइए जो आंसर करेक्ट है उसका। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस इज, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस इज ऑप्शन ए ओस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन सी गोट, ऑप्शन डी सोरेटिक आर्थराइटिस। इसका करेक्ट आंसर होगा osteoarthritis. Osteoarthritis is a degenerative joint disease that typically affects older individual. So इसका करेक्ट आंसर osteoarthritis होगा। करेक्ट कमेंट करते जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करते जाइए। इन इंडिया इज द लीडिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिस्क, इन इंडिया इज द लीडिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रिस्क। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन डी एपिलेप्सी। एनसीडी मोस्ट लीडिंग डिजीज इज ऑप्शन ए hypertension. Hypertension, also known as high blood pressure, is considered the leading non-communicable disease risk in India. So इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हाइपरटेंशन। सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइए, कमेंट करते जाइए। मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। जिन रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफिएबल किया जा सकता है, ऑप्शन ए हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी स्मोकिंग एंड ऑप्शन डी जेनेटिक। सो इसका करेक्ट आंसर डी जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर को मॉडिफिएबल नहीं किया जा सकता। सो इसका करेक्ट आंसर होगा जेनेटिक फैक्टर। हाई ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड स्मोकिंग आर मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर दैट कैन बी एड्रेस्ड थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस एंड मेडिकल इंटरवेंशंस। What is dose and route of HPV वैक्सीनेशन? HPV वैक्सीनेशन की डोज और रूट क्या होगा? ऑप्शन ए 1 ml इंट्राडर्मल, ऑप्शन बी 2 ml इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंड ऑप्शन डी 1 ml। सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर डोज। द रिकमेंडेड डोज इज 0.5 ml एंड रूट इट इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली। सो इसका करेक्ट आंसर coronary heart disease is also known as CHD is also known as option A ischemic heart disease, option B rheumatic heart disease, option C arrhythmias, option D mitral regulatories। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ischemic heart disease। ischemic refers to adequate blood flow usually caused by narrowing or blockage of the coronary artery। सो इसका करेक्ट आंसर ischemic heart disease। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जितना संभव हो उतना आप लोग शेयर करते जाइए।